students, today we start our fourth part of lesson number 2, indicators of growth and development. In a first, second and third lecture, we will complete meaning of economic growth, meaning of economic development, limitation of economic development, characteristic of economic development, difference between growth and development, indicators of development, growth rate of national income, per capita income, and improvement in quality of life and PQLI. Now today in a fourth part we have learned Human Development Index HDI. Human Development Index HDI. The most recent indicator of development is the Human Development Index. United Nations Development Program presented the Human Development Report in 1990. In the report, HDI was presented as measurement of development along with economic aspect of measurement. HDI emphasized more on non-economic aspect too. Indian economists too contribute in involving HDI on the basis of evaluation made regarding the development efforts in different countries. Improvements were introduced in the year 2010 in minimum and maximum value which were used to measure HDI since 1990. ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको प्रेजेंट किसने किया था? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने ये पूरा इंडेक्स प्रेजेंट किया है और इंडियन इकोनॉमिस्ट ने भी इसे एक्सेप्ट किया है, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया है. नेक्स्ट, डिटर्मिनेशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. 3 फैक्टर्स alone are considered while preparing HDI to make it simple and easy. Instead of absolute value, average of all 3 value are prepared. जैसे हमने PQLI में देखा था 3 एस्पेक्ट, ऐसे यहाँ पे भी 3 एस्पेक्ट्स यहाँ पे भी लिए गए हैं. फर्स्ट वन इज़ लाइफ एक्सेप्टेंसी, सेकेंड इज़ एजुकेशनल अचीवमेंट्स एंड थर्ड वन इज़ इनकम डेटा. फर्स्ट वन इज़ लाइफ एक्सेप्टेंसी. उसमें भी हमने देखा था लाइफ एक्सेप्टेंसी मीन्स कि कोई पर्सन की जब चाइल्ड बॉर्न होता है तो एक्सेप्ट किया जाता है कि वो 50, 70, 60 कितने ईयर उसकी हेल्दी बॉडी कैसी है उसकी, उस पे से उसकी हेल्थ पे से डिसाइड होता है कि उसकी लाइफ एक्सेप्टेंसी क्या है. What is the accepted number of years a person will live at the time of birth of a population of a country determines the value. If it is less than 50 year, अगर कोई कंट्री में लाइफ एक्सेप्टेंसी 50 ईयर से कम है तो वो बहुत ही बैड है, वहाँ की जो मेडिकल सर्विसेज है, मेडिकल केयर है, वो बहुत ही वीक है. सेकेंड वन इज़ नॉलेज, literacy or education. To know the quantum of knowledge, adult literacy in present is calculated. People in the age group 15 year and above are included. मीन्स कि 15 ईयर और अबोव के जो भी चाइल्ड है उनको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है. और नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड बी एक्सेप्टेड नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि उन्होंने कितने साल स्कूल में जाके पढ़ाई की है और एक्चुअल में उनको कितने साल स्कूल जाके पढ़ाई करनी चाहिए थी, उसके पे से वैल्यू फाइंड होती है. थर्ड वन इज़ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल सर्विसेज, गुड सैनिटाइजेशन. यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किसके बेस पे डिसाइड होती है कि हम ड्रिंकिंग वाटर है, मेडिकल सर्विसेज है, गुड सैनिटाइजेशन फैसिलिटी है, इन्फिनिट मोरालिटी रेट्स है, ये सब के ऊपर से डिसाइड होती है. कंसिडर्ड विच डिपेंड्स ऑन इनकम. इनकम इंडेक्स इज दैट इन विच पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेस ऑफ PPP. मीन नेक्स्ट इज
इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, HDI के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है? तो फर्स्ट वन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HDI इज 1 विच इज़ बेस्ड ऑन 3 स्टैंडर्ड्स। जो 3 स्टैंडर्ड्स है, लाइफ एक्सेप्टेंसी, नॉलेज एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसकी जो एवरेज है, रेंज है, वो 1 है। स्टैंडर्ड HDI is 1 which is based on 3 standards. Second one is value of HDI range from 0 to 1. जो PQLI था वो 0 से 100 था और यहाँ पे है HDI 0 to 1. Third is the country whose HDI is closer to 1 is considered more developed and it gets lower ranking in HDI. It gets higher ranking in HDI, and third is the country whose HDI is further from 1 is considered less developed, it gets lower ranking in HDI. In 2014, Norway ranked number 1 with 0.9444 HDI, while India with HDI of 0.609 ranked 130th आउट ऑफ 188 कंट्रीज़। इंडिया का रैंक था वो 188 कंट्री में से 130th रैंक था। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे टेबल शो किया है, इसमें है कंट्री का नेम, HDI, पर कैपिटा इनकम, एवरेज लाइफ एक्सेप्टेंसी, एक्सेप्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एवरेज नंबर ऑफ ईयर इन स्कूलिंग। अकॉर्डिंग टू HDI ऑफ 2015 which has included in 188 countries, classified countries into a 4 on the basis of human development. यहाँ पे जो हमें परसेंटेज या रेट या रैंक या वैल्यू फाइंड आउट करके दी है वो 2015 की है और 188 कंट्रीज़ में से जो 188 कंट्रीज़ की थी उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। Countries having highest human development, the average value of human development of first to 49th country is 0.890. Countries having high human development, average value of HDI countries with 50 to 105 rank is 0.735. Third is countries with moderate human development, average value of HDI is of the countries with 106 to 143 rank in 0.614, and countries having low human development, average value of HDI of the country with 144 to 188 in 0.493. इसमें इंडिया का रैंक क्या है? 130 एंड वैल्यू ऑफ HDI इज है 0.690। तो जो 0.690 है वो है हाई डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इंडिया जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया में नहीं है, पर मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट इज derived conclusion. In 2014, Norway is number 1. India with 0.690 is 130th in the list of 188 countries. India comes in moderate human development countries in the classification of Human Development Index. और जो सबसे लास्ट नंबर पे है नाइगर, इन द अफ्रीका में है नाइगर, उसका जो रैंक था 0.348, कम लास्ट इन द ऑर्डर ऑफ HDI ऑफ 2014. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. HDI इज कंप्लीट, मीन्स के आगे के जो सारे इंडिकेटर्स थे उसमें थोड़ी बहुत लिमिटेशंस रह जाती थी, बट HDI इज़ अ कंप्लीट एंड as it not only takes economic factor but also includes social welfare by giving importance to the education and health. आगे के जो इंडिकेटर थे वो इनकम पे और एजुकेशन पे ही फोकस करते थे, पर यहाँ पे सोशल वेलफेयर का भी ध्यान दिया जाता है. HDI indicate the policy maker the economic development is only a tool but the ultimate object is only human health welfare. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मोटिव है
वो मेन मोटिव तो क्या है कि ह्यूमन वेलफेयर। ट्रू प्रोग्रेस इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस। फोर्थ वन इज HDI इज फंक्शनल। Fifth is developing countries get an idea as to where there is a scope for development and in which direction should be government work by looking into the HDI। मीन्स कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, उनको HDI पे से ध्यान आता है कि कौन सी पॉलिसीज़ इंडिया में लॉन्च करनी चाहिए, कहाँ पे हम वीक है, कहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ और वीकनेस अगर गवर्नमेंट को फाइंड आउट करनी है तो HDI से वो फाइंड आउट कर सकते हैं और नई पॉलिसीज़ ला सकते हैं। HDI इज़ अ प्रोग्रेसिव इन इट्स अप्रोच। HDI है वो प्रोग्रेसिव है। नेक्स्ट इज लिमिटेशन। ओनली 3 सोशल इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड इन HDI। 3 इंडिकेटर्स ही लिए जाते हैं। सेकेंड इज ऑल 3 इंडिकेटर्स आर गिवन इक्वल वेटेज। जैसा PQLI में था कि सबको एक ही जैसा वेटेज दिया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज नॉट एन एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन। अदर देन HDI वी हैव GDI, HPI, TAI and HCI and such other indicators are also used। हमारे सिलेबस में हमने कितने इंडिकेटर्स देखे तो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, PQLI and HDI। Now lesson is completed. Thank you. Goodbye.